everyone and welcome to Thorough Newspaper Analysis, which is presented to you by LawSikho. Let's see what articles we will be discussing today. Basically, today we have two articles, both are from the Indian Express. First article is Dear Sundar Pichai. Now, as all of us know, that Sundar Pichai is the CEO, which is the Chief Executive Officer of Google, and he obviously hails from India. So, अभी recently Google ने decide किया है कि वो एक amount $10 billion की amount अगले 5 से 7 साल में इंडिया में invest करेंगे. So actually, the author here is trying to highlight the key areas where this amount or this investment can be made in India to make it a digital power. The second article is, will Trump's order to buy medicines local impact India pharmacy industry? So basically, recently, because we know that the Trump administration is very active these days because November में वहाँ elections आने वाले हैं. So अभी Donald Trump ने वहाँ के president ने ये order किया है कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी medicines हैं या pharmaceutical products हैं वो हम domestically ही procure करेंगे, यानी domestically ही बनाएंगे rather than importing them from any other country. So the impact of that on India has to be critically analyzed. And then the third one is News in Flash, which is LawSikho's own initiative, wherein we will be discussing the small pointer news, which are primarily important from our prelims exam, keeping in mind the requirements of that exam. So before that, we move deep into today's discussion. Let's have a look at the LawSikho test prep courses that we have for you. So we have the Lord of the Courses, which is the judiciary course that we have for all of you. So all judicial aspirants can definitely go and join the course. You can download for yourself this free study material, which is available on the landing page. The link is there already in the description box. So we have various other courses. We'll be very shortly launching the course for UPSC Law Optional as well. So you can have a look at that also once it is open for all. So this is the MCQ for the day. हम हर दिन एक MCQ डिस्कस करते हैं जो डिस्कस करता है जो रिलेटेड होता है हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन से. So आज का MCQ है, active pharmaceutical ingredients recently seen in news are: first, active drugs that help cure rare diseases; second, those agents which enhance the quality of a drug; third, basic raw materials using which the final drug is produced; or fourth, all of the above. So as soon as you are able to answer this, do jot down your answer in the comment section below and let's see that who will be able to do it as fast as possible. So this is the descriptive question for the day. Though India has made several moves to strengthen its technological sector, it still needs some strategic area-specific approaches to become a digital power. Discuss. So that basically is like you will have to discuss as to what are the key areas. कौन सी सब वो important areas हैं हमारी country में जहाँ पे हमें digitization की या फिर technological to say strengthening की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. So this answer has to be written within a word limit of 250 to maximum 300 words, and you may write down the answer in the comment section and we shall definitely give it a review. With this, let's quickly start with the discussion. The first one is talking about digitizing India and the role Google shall play into it. Recently, Google has announced to invest $10 billion in India over the next 5 to 7 years with the aim of consolidating its position in the digital ecosystem. Basically, हमने जैसे अभी डिस्कस किया था कि जो गूगल है उन्होंने डिसाइड किया है, गूगल ने डिसाइड किया है कि अगले 5 से 7 सालों के बीच में इतना बड़ा अमाउंट, so this basically $10 billion is a very huge and hefty amount, and उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 5 से 7 सालों में वो इस अमाउंट को स्पेंड करेंगे इंडिया में to make it a better of a digital ecosystem, and ताकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके. So this is a very positive step, but obviously जब आपके पास फंडिंग होती है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का फायदा तभी मिलता है जब उन रिसोर्सेज को सही जगह पे एलोकेट किया जाए. For example, if we have a surplus of food grains, अब आप उन food grains को उनको नहीं दे रहे हो जो actually malnourished है या hunger stricken है, rather आप food grains को ऐसे ही बांट रहे हो या फिर उन लोगों को दे रहे हो जो already well to do है या फिर उनको उन food grains की जरूरत ही नहीं है. So you can imagine कि पूरी जो रिसोर्स थी फूड ग्रेन की वो वेस्ट हो जाएगी. एक्चुअल में जिसकी बेनिफिशियरी होने चाहिए थे उनको कुछ ना कुछ भी बेनिफिट मिलेगा ही नहीं. Similar is the case with digitization technology as well, because there are obviously some weaker areas of our society which need
primarily need greater attention for that matter, and also they need better resources also. Like अभी recently कोविड पैंडेमिक की वजह से जो schools shut down हुए हैं, तो जो ई क्लासेस या ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो ओपन हुए हैं बच्चों को पढ़ाने सिखाने के लिए, तो ऐसे में जो सिटीज है उनको कोई खास प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। बट ऑब्वियसली एजुकेशन जो पहले से एक इशू है जो बहुत कम है रूरल एरियाज में, ये ऑलरेडी और कम हो जा रहा है इस वजह से, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी की इतनी ज्यादा to say availability नहीं है. So now in such a scenario this can be one example कि this is the hot spot जहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. So now since we have understood this concept very clearly now, let's see that what 8 digital realities or what 8 areas have been highlighted by the author in this article, जहाँ पे उनको लगता है कि गूगल को अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा to say प्रायोरिटी के साथ करनी चाहिए. So first point is India recognizes internet as a fundamental right, yet leads in internet shutdowns. Now here is another question for you. Can any of you write down in the comment section as to कौन से केस में ये upheld हुआ था, ये hold किया गया था that internet is a fundamental right under Article 19(1)(a) of the Constitution. If you are able to write it, it's very good. Otherwise, we will be telling you the answer in the very next news analysis. So I can give you a hint on that. It was done by State of Kerala. So that is a hint for you all. So India recognizes internet as a fundamental right, yet leads to internet shutdowns. Now ये एक बहुत ही ज्यादा जिसको कह सकते हैं एक ironical situation है कि जहाँ पे एक जगह आप किसी एक चीज को, like in this case the internet, आप उसको fundamental right भी मानते हो, and in the second place आप internet shutdowns के hub हो. So अभी recently in the year 2018-19, it was the one India came in amongst the top countries जो internet shutdowns में रैंक हुई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर द CAA एंड जब कश्मीर में आर्टिकल 370 प्रोवोक किया गया था, तो तब से लेके अब तक भी जो इंटरनेट शटडाउन है वो बहुत ज्यादा ईज अप नहीं किया गया है. सो दैट इज अ वेरी बिग ब्लॉट ऑन दी टू से सेटअप दैट वी हैव करेंटली इन इंडिया, बिकॉज दिस इज वेरी detrimental for the growth as well as any kind of growth, now be it educational, be it economical, be it like societal or any growth for that matter. So इसीलिए इस तरीके की कुछ जो है ऑथर कहते हैं कि गूगल को इस तरीके के वेंचर्स करने चाहिए ताकि हम इंटरनेट को एज अ फंडामेंटल राइट हम सिक्योर कर सकें. So these are some statistics, you can always refer to them. So this is the $10 billion India bet. ये इसके जो है key aspects होंगे यहाँ पे, and this is actually talking about the number of internet users, and these are the internet bans or cuts for that matter. Then the second point is egregious access gaps. Now obviously जहां इंटरनेट पहुंच भी रहा है वहां भी ये नहीं है कि सबको इक्वली मिल रहा हो, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स हैव रिवील्ड दैट ओनली 21% ऑफ women are mobile internet users and 1/4 of rural population has internet access. That is it. So this is definitely very very marginal when we like at one side अगर हम एस्पायर कर रहे हैं कि हमें इंडिया को डिजिटल पावर बनाना है, टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम यहाँ का डेवलप करना है, तो वहां पे अगर हम देखें तो आपकी कितनी पॉपुलेशन इंटरनेट यूज कर रही है, इट इज वेरी मार्जिनल. सो यू हैव to increase that as well. Third, mobile phone is a source of empowerment for the informal workers. Now यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे अभी जो हमारा लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स और जो इनफॉर्मल वर्कर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, राइट? सो हुआ क्या कि ATMs वर अ प्रॉब्लम बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग. ऑब्वियसली कुछ लोग तो पैदल भी ट्रैवल करके किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स वो पैदल ट्रैवल करके अपने घर पहुंचे. सो दो ऑब्वियसली जिनके पास मोबाइल फोन्स थे तो कुछ बैटरी के इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज थे, बट स्टिल अगर वो जो जिसको कह सकते हैं हम नो कैश ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं, जो एक्चुअल डीमोनेटाइजेशन, रियल टर्म डीमोनेटाइजेशन होता है, अगर वो सच में होता तो उनको कैश की भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, एंड दे कुड हैव डन ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली थ्रू देयर मोबाइल फोन्स और यूजिंग सम बेसिक एप्स लाइक द गूगल पे फॉर दैट एग्जांपल. बट ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया में अभी भी डीमोनेटाइजेशन इज मतलब फार देन अ ड्रीम रियलाइज्ड, सो इट शुड आल्सो बी वर्कड अपॉन. Then fourth, digitizing age-old agricultural practices can be transformational, which has the potential to create $33 billion in new value annually. So basically यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट टच किया है, जैसे उन्होंने कह सकते हैं कि हर सेक्टर, सोसाइटी के हर सेक्टर को उन्होंने टच करने की कोशिश की है ऑथर ने. तो इन्होंने कहा है कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. कैसे? नाउ दिस कैन बी अ क्वेश्चन. सो बेसिकली जो मशीनरी वो यूज करते हैं दिस एंड दैट वो तो है ही है, बट उसके अलावा जो इंटरनेट और जो इस तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं वो उसका यूज कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल उनको
प्रॉपर एप्स का यूज करना बताया जा सकता है और प्रॉपर एप्स इस तरीके की डेवलप की जा सकती है जहाँ पे उनको अपनी सोइंग पीरियड कि आपको कब बीज बोने हैं, किस टाइम तक वो रेडी हो जाएंगे, कब आपको उनको हार्वेस्ट करना है, तो वो एप्स डिजिटली उसको थोड़ा सा उसे एनालाइज करके उनको आंसर दे सके। फर्दर बहुत सारे डिजीज के बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को डिजिटली मिल सकती है। उसके अलावा बहुत तरीके की वेदर फोरकास्ट बाय इंटीग्रेटिंग दी सैटेलाइट्स एंड दी अदर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, ताकि अगर हैवी रेन होने वाली है या फिर ड्रॉट पड़ने वाली है तो उनको इन एडवांस पता चल सकता है यूजिंग दी टेक्नोलॉजी। So this is how even the agriculture sector can be heavily and highly benefited through the use of technology. Fifth, India is data rich, yes, but without a forward-looking and inclusive data governance policy. Now, ये भी एक बहुत बड़ा key area author यहाँ highlight करते हैं कि ऐसा नहीं है that India doesn't use the data or doesn't know the use of data, बल्कि इंडिया बहुत ज्यादा data rich है, इंडिया के पास बहुत data है, but the only problem is हमारे पास उस डेटा को सिक्योर रखने की कोई खास मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने जो 59 चाइनीज एप्स जो हमने बैन करी थी, सो बेसिकली हमने उसको नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी का क्वेश्चन हमने उसको उठाया था, एंड दैट इज व्हाई दे वर बैंड। नाउ दिस इज द वेरी क्वेश्चन एज टू, जब आप इतनी बड़ी इतनी बड़ी इकोनॉमी भी हो, इतना बड़े आपके पास इंटरनेट यूजर्स ऑलमोस्ट लाइक आप टॉप कंट्रीज में से हो जो स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स खरीदते हैं फॉर दैट मैटर, तो ऐसे में आपके पास एक साइड बाय साइड मैकेनिज्म भी होना चाहिए डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने वॉलेट में एक बड़ी अमाउंट लेके चल रहे हैं, सो यू शुड बी मोर केयरफुल कि उस अमाउंट को कोई चोरी ना कर ले, राइट? सो this has to go hand in hand. So keeping something with yourself and making sure that it is safe with you also should be kept in mind. इसीलिए जैसे हमारा ड्राफ्ट पर्सनल डेटा बिल जो है वो, या इन सब चीजों को बहुत सारा कुछ जो है इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ताकि जो हमारा डेटा की रिचनेस है वो हमारे लिए एक असेट, एक फायदे की तरह ही काम करे, ना कि वो हमें उल्टा नुकसान पहुंचाए। देन The infodemic problem. Now, this is a very, very common problem. यहाँ पे एक बहुत अच्छा term use किया गया है, infodemic. That is a pandemic, an epidemic which is caused due to the misinformation. Because we know कि fake news इंडिया में एक बहुत बड़ा problem है, बहुत ही बड़ी problem है. So इसलिए इस तरह की technologies develop होनी चाहिए कि fake news को हर तरीके से रोका जा सके, इसका circulation जो है वो रोका जा सके. Then seventh, investment in India must be viewed in larger geopolitical context. So yes, it should be viewed in a sense कि India as a country तो benefit करे ही करे, but India अपनी जो neighboring countries हैं, neighboring areas है, वहाँ पे भी एक better hold बना सके. इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारा अभी रिसेंटली एक नाविक हमारा जो सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम लॉन्च हुआ है, वो इंडिया का पर्सनलाइज्ड खुद का नेविगेशन सिस्टम है। लाइक जैसे अभी हम जीपीएस यूज करते हैं, ये यूएसए का है, विच इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कि आपको पता चल जाता है कौन कहाँ पे उसकी लोकेशन। सिमिलरली अब इंडिया भी ये कर पाएगा यूजिंग इट्स ओन सैटेलाइट्स। So digital technologies can create jobs. So this is definitely less said. मतलब जितना बोलेंगे इसके ये तो कम है, because digital technologies are the probably in the current scenario they can be a potential and one of the biggest areas where jobs can be created. With this, let's move to the next article for the day, which talks about the United States and Indian pharmaceutical industry. Recently, US President has signed an order aiming to boost domestic production of essential medicines and critical drug inputs. So, as just we discussed in the introduction as well, कि USA जो है वो heavily depend करता है अपनी pharmaceutical products के लिए, या pharmaceutical to say usages के लिए depend करता है दूसरी countries पे, and that too primarily on China and India. अब जब से पैंडेमिक का टाइम आया है, सब कंट्रीज को ये रियलाइज हुआ है कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था उनके लिए सेल्फ सफिशिएंट होना ड्रग प्रोडक्शन में, यानी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कितना जरूरी था कि वो खुद से सेल्फ रिलायंट होते। An example to this can be taken as अभी रिसेंटली इंडिया ने बहुत बड़ी अमाउंट हाइड्रोक्लोरोक्विन की, which was considered to be according to the Trump administration, वो काफी एक पोटेंशियल ड्रग की तरह वो लेके उसको चल रहे थे, that it is quite beneficial in the cure of COVID-19. So obviously उसके पास खुद ये यूएसए के पास ये रिसोर्सेज नहीं थी, इसलिए उसको बहुत बड़ी अमाउंट इसकी जो है इंडिया से इंपोर्ट करवानी पड़ी अपनी कंट्री में। एंड इवन अदरवाइज इट इज सेड दैट एवरी थर्ड मेडिसिन और एवरी थर्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट व्हिच इज सोल्ड और यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज मेड इन इंडिया। सो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा यूएसए की डिपेंडेंस है इंडिया पे, एंड ऑल्सो फॉर चाइना,
फॉर द फार्मास्यूटिकल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स. सो इसीलिए अब यूएस जो है वो प्लान कर रहा है कि अब हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एंड दस we would boost the domestic production of the essential medicines and critical drug inputs. Now US is heavily dependent on China, we know, for the API. Now this is one another question which can be a very potential question. This can be a prelims question also, अगर सिर्फ API के बारे में पूछते हैं, या फिर पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या यूएस इंडिया ट्रेड एक्सचेंज के बारे में भी मेंस का या फिर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इंडिया एंड इट्स ट्रेड रिलेशंस विद द वर्ल्ड, एक ऐसे का क्वेश्चन भी आ सकता है. So this order mandates creation of a list of essential drugs and fast tracking of clearances. So we should know that what is actually API. Basically, APIs, they stand for active pharmaceutical ingredient. Now, by ingredient we can easily understand कि जब हम कोई भी dish prepare करते हैं, for example, तो हम कुछ ingredients चुनते हैं. So ingredients वो important elements होते हैं, वो चीजें होती हैं जिनको मिक्स करके, उनको प्रोसेस करके आप एक फाइनल डिश यानी एक फाइनल प्रोडक्ट बना पाते हैं. सो सिमिलरली इन द केस ऑफ फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों के केस में भी क्या होता है कि कुछ ऐसी बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने में जरूरी होती है. जैसे अब एग्जांपल अगर हम कोई कफ सिरप बना रहे हैं या फिर हम पैरासीटामोल की कोई टैबलेट बना रहे हैं, सो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, जिसको कहते हैं ना कि सॉल्ट्स है, इसमें ये सॉल्ट है, इसमें वो सॉल्ट है. सो बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स कॉम्पोजिशंस होते हैं. सो दोज सॉल्ट्स और दोज की इंग्रेडिएंट्स व्हिच हेल्प इन मेकिंग इट अ फाइनल प्रोडक्ट आर नोन एज द APIs or active pharmaceutical ingredients. So it is the term used to refer to the biologically active component of a drug product. Example, a tablet or a capsule, etc. So drug products are usually composed of several components, as we just discussed. तो जिन components से ये बनता है वो APIs उनको हम कहते हैं. So एक यहाँ पे हमें एक point of information यहाँ पर हमारा है कि इंडिया, हालांकि इंडिया को हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, राइट. सो इंडिया कहते हैं कि इंडिया सबसे बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली ड्रग्स बनाने में बहुत ज्यादा फेमस है एट द ग्लोबल लेवल. बट दिस ऑल्सो शुड बी नोन कि इंडिया फाइनल प्रोडक्ट्स के केस में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, बट वो खुद अपने रॉ मटेरियल्स के लिए, और इस केस में रॉ मटेरियल क्या है, जो हमारा API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो उसके लिए 60 to 70% डिपेंड करता है चाइना पे. And then again, China is one of the largest exporters of the APIs, but not of the final product or the final finished drugs. Now, this is a chance for India कि, और वैसे अब इंडिया इसमें वेंचर कर भी रहे हैं, that we make most of the APIs also domestically, ताकि हमें चाइना पे डिपेंड ना करना पड़े, because obviously this is a simple trade deal. तो कभी अगर हमारे और चाइना के बीच में अग्रेशन होता है, so there is a very possible chance कि चाइना ये जो API का सप्लाई है वो कट कर दे. Now in such a scenario, अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाएंगे कैसे? So this should be kept in mind. Now let's see how important is the US market for Indian pharmaceutical industry. Now we know that India is known as the pharmacy of the world. It is one of the largest exporters of pharmaceutical products. अब देखते हैं कि इंडिया के लिए USA as a market for its pharmaceutical goods is how much essential. US is the largest market for India's pharmaceutical products. Now this, as we just said, कि वहाँ पे हर तीसरी दवाई जो है वो approximately India, made in India ही होती है, low cost होती है and high in quality. So इंडिया का सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो है वो यूएस को ही जाता है. बट देन अगेन इट शुड बी सीन कि क्या इस तरह की कोई पॉलिसी जहाँ पे यूएस खुद डोमेस्टिकली बनाना चाहती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, कितना वो इम्पैक्ट करेगी इंडिया पे. सो इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स टू यूएस आर एक्स फैक्ट्री वैल्यूड एट अराउंड $6 billion. सो डेटा इज फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इट इज एक्चुअली द फार्मेक्सिल. सो उन्होंने बताया है कि बहुत बड़ी, एक काफी बड़ा जो इसको कहते हैं ट्रेड का जो वैल्यू है वो इसमें इंक्लूडेड है. Now, this is the main point to understand that will this order affect Indian drug makers or not. So ऐसा है कि there may be a chance कि हम पे बहुत बड़ा impact पड़ रहा हो, या हो सकता है हम पे इतना major impact ना पड़ रहा हो. Now let's see that actual scenario क्या है. First, no impact in the short term. So in the short term there is no impact for the following reasons. First, इंडियन ड्रग्स, यस दिस माइट बी सरप्राइजिंग क्योंकि वो इतना बड़ा मार्केट है इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन फिर भी इंडिया बीइंग एन एक्सपोर्टर हम पे इम्पैक्ट कैसे नहीं पड़ेगा इन द शॉर्ट टर्म एटलीस्ट. फर्स्ट रीजन इज इंडियन ड्रग्स आर लार्जली नॉट इन्वॉल्व्ड इन यूएस पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस. बेसिकली होता क्या है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट है. सो उसमें क्या है कि कई सारे नेशंस ने अपने आप को एनरोल कराया हुआ है, जिसमें कुछ रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं. सो दैट पब्लिक प्रोक्योरमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है इन द नेम ऑफ द
गवर्नमेंट अथॉरिटी, एज इन जैसे कि भाई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं या कुछ भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो जैसे हाइड्रोक्लोरोक्यून है, क्यून थी फॉर एग्जांपल, सो इट वाज सेंट डायरेक्टली टू द यूएस गवर्नमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट. सो कोई पर्सनल, जैसे अगर मैं कोई ट्रेड कर रही हूँ यूएस के साथ में, तो दैट डेफिनेटली विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट. अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक प्रोक्योरमेंट. अब कई बार कई सारी कंट्रीज के जो जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और ताकि पूरे ट्रांजैक्शन में कॉम्पिटिटिवनेस और एक तरीके से इक्वालिटी बनी रहे, उसके लिए डब्ल्यूटीओ ने कुछ रूल्स बनाए हैं फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जिसका इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल गुड्स हैं ये उसके अंडर नहीं आते, एज इन कि वो उन रूल से बच जाते हैं. यानी कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट. और इस वजह से, क्योंकि हम जिसको कहते हैं बाल बाल बच गए, सो इंडियन ड्रग्स उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो डेफिनेटली ये जो ट्रांजैक्शन है वो हैम्पर इससे नहीं होगा. एंड इट इज कंसिडर्ड दैट इट मे ऑलमोस्ट रिमेन सेम एटलीस्ट फॉर अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट येस अगेन इट इज ओनली अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट. देन order exempts were procuring domestic essential medicines increased cost by 25%. yes. So यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने अब जो पॉलिसी ड्राफ्ट करी है अपने लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, उसमें ये भी कहा गया है कि डेफिनेटली वी विल ट्राई कि जो हम डोमेस्टिकली ही हम उसको क्या कह सकते हैं, अपने फार्मास्यूटिकल गुड्स को बनाए, यूएसए कह रहा है. बट देन अगेन ऑब्वियसली उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं. तो ऐसा कोई एब्सोल्यूट पॉलिसी नहीं है कि अब तो हम डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करेंगे सब कुछ, बिकॉज उनको ऑब्वियसली फीजिबिलिटी भी देखनी होगी. जैसे कि कुछ चीजों के लिए तो रॉ मटेरियल वहाँ अवेलेबल होगा ही नहीं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि हर किसी देश के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो. तो ऑब्वियसली अगर जहाँ उसके पास खुद का रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो दूसरी कंट्रीज पे, मोस्ट प्रेफरेबली इंडिया पे या चाइना पे, जैसा भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, डिपेंड करेगा अपने उन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए. एंड सेकेंडली, अगर उसको लगता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रग, क्योंकि हम अभी पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि इंडिया की जो ड्रग्स हैं वो ना सिर्फ हाई इन क्वालिटी है बट लो इन प्राइसेस, सो इट इज अ वेरी लाइक द बेस्ट डील दैट यू कुड हैव. तो अगर उनको लगता है कि किसी भी चीज को, जो ड्रग है, उसको डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट उसको इंपोर्ट करने की कॉस्ट से भी ज्यादा आ रही है, तो डेफिनेटली इट इज useless. It makes absolutely no sense for that matter. तो अगर ऐसा होगा, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन और महंगा हो रहा है rather than the import, then we will definitely go for the import of those goods, those pharmaceutical products. So I hope that is clear for you for the day. This is the news and flash Food Vision 2050 prize. So the Rockefeller Foundation has selected Hyderabad-based non-profit Nandi Foundation as one of the top 10 visionaries in the world of the Food Vision 2050 prize. Basically, what is done is कि top 10 visionaries चुनते हैं कि किन्होंने फूड सेक्टर को, यानी कि एग्रीकल्चर में फूड सेक्टर को जो है ज्यादा एक नया आउटलुक देने की कोशिश करी है. एंड दैट इज वाई इसके लिए जो नंदी फाउंडेशन है हैदराबाद की, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको सिलेक्ट किया गया है. So the award recognized the application of the Aruconomics. So this also can be a potential prelims question. That Aruconomics actually क्या है? So it is based on the work of tribal farmers in Araku. So Araku is an area. It is a model in the regions of Araku, Wardha, and New Delhi that follows an ABCDEFGH framework. So this is very interesting to note. These are the things. A is for agriculture, so that you should focus on the agriculture. B, focus on the biology, the biological ingredients, the biological requirements. C is compost, that is use of natural fertilizers. D, decentralized decision making, which is the bottom up approach, because obviously कि हमें जो है जो farmers हैं या जो stakeholders हैं उनको decision making process में include करना चाहिए. C, E is the entrepreneurs, definitely नई venturing, नया investment इस area में होना चाहिए. F is families, strengthening the families and involving them more into this work. G is the global market, obviously कि आप जो भी products बना रहे हो उनको इतना competitive और better quality बनाइए ताकि वो global market में भी compete कर सकें. And then finally H, headstands or turning current approaches on their head. So basically, it's like the bottom up approach which we are seeing. So basically, it's like you should focus, and these are the primary aims and primary steps that can be taken to even better the situation of food and agriculture in India. So this was all for today. We hope it was a good session for you. Stay tuned with LawSikho for such more sessions to come. Thank you so much.